Hello students, today we are going to start with the lesson surface area and volumes. इस लेसन में हम लोगों को अलग-अलग शेप्स के सरफेस एरियाज देखने एंड उनके वॉल्यूम्स देखने। तो सबसे पहले हम बेसिक जो फॉर्मूलाज यूज होने वाले इस लेसन में उन फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक एक शेप देखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग उनके फॉर्मूलाज देखेंगे। देन therefore our first shape is what? Cube. ठीक है, cube. So first formula for the cube is what? Lateral surface area of cube. Now lateral surface area means what? Area of the four walls. For example, if you are considering this as a room, then the area of the walls will be our lateral surface area. Means what? In case of lateral surface area, the upper face and the lower face is excluded, and we are going to take only the surrounding faces. Understood? So lateral surface area of cube is what? 4L square. Second is our total surface area. Now total surface area means what? We are going to just add these two faces in lateral surface area. Then total surface area will be 4L square plus 2L square, that is 6L square. Third formula is about volume of the cube. ठीक है, volume of a cube. Now volume of a cube is what? See, this is the length of a cube, and in case of a cube all edges are equal, so ये इसकी height भी क्या हो जाएगी? L हो जाएगी, और ये भी L हो जाएगा. Understood? Then the volume of a cube is what? L into L into L, that is L cube. ठीक है, so these are the basic formulas we are going to use while solving problems of a cube. Next we are going to take cuboid. This is cuboid, where this is the length of a cuboid, this is breadth of a cuboid, and this is height of a cuboid. Then again we are going to check formulas for the cuboid. First formula is what? Again, lateral surface area of a cuboid. In case of cube and in case of cuboid, the lateral surface area means what? Area of the four surrounding faces, excluding upper face and lower face. And lateral surface area becomes 2H bracket L plus B. ठीक है? Second, we are going to take total surface area of cuboid. Now total surface area क्या होगा? Again we are going to include those upper and lower faces that we have excluded in lateral surface area. Then our total surface area becomes 2LB plus BH plus LH. Okay? C. Now we are going to find volume of cuboid. The formula for the volume of cuboid is nothing but just we have to multiply its dimensions, that is L, B and H. So it will be L into B into H. So these are the basic formulas used for solving questions that includes cuboid. Understood? Next we are going to see the formulas for cylinder, and in this cylinder we are going to check the type of cylinder that we are going to C is right circular cylinder. मतलब हमें यहाँ पे right circular cylinder के corresponding formulas को देखना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं right circular cylinder. Right circular cylinder मतलब इस cylinder को right circular cylinder क्यों कहा गया है? देखो इस केस में यहाँ पे this is what? Radius of a cylinder. Understood? And this is what? Height of a cylinder. Now the height of a cylinder is perpendicular to the base. Means what? This is perpendicular to the radius, so that we are going to say that this cylinder is a right circular cylinder, as height is making 90 degree with the radius, with the base. ठीक है, तो इसके लिए भी हम formulas देखेंगे. सबसे पहले हमारा formula होगा, so in case of cylinder we are going to use curved surface area. ठीक है, तो ये जो सिलेंडर फॉर्म हुआ है, ये सिलेंडर फॉर्म होने के लिए देखो ये हमारी चीज, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है,
इस रेक्टेंगुलर शीट को अगर मैंने फोल्ड कर दिया, मैंने उसको सर्कल शेप में फोल्ड कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। एंड उन फेसेस को मैंने सर्कल से क्लोज कर दिया, ठीक है। सो मेरा उसमें क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब क्या? अभी इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे? तो देखो, ये मेरी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है and this is breadth of the rectangle. We are going to consider it as a height because it is perpendicular to the base. Understood? Now we are going to convert this rectangular shape into circular shape, ठीक है। तो ये सर्कुलर शेप में मतलब मैं उसको फोल्ड करूंगा सर्कल शेप में, तो मुझे क्या दिखाई देगा? ये जो लेंथ है वो सर्कल का आउटर रिंग बनाती है। अब ये रिंग मतलब क्या होता है? सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। तो इसका मतलब लेंथ इज करस्पॉन्डिंग टू व्हाट? Circumference, that is 2 pi r. Understood? So this is what length is equal to the circumference of the circle and breadth we are going to consider it as a height. तो हमें पता है फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई l विद b, ठीक है। तो l क्या है हमारा? 2 pi r एंड हमारी हाइट क्या है? h। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, दैट इज 2 pi r h, ठीक है। सेकंड, वी आर गोइंग टू चेक टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। नाउ जैसे मैंने इसको सर्कुलर शेप में फोल्ड कर दिया है, तो उसे क्लोज करने के लिए व्हाट इज रिक्वायरमेंट? तो वहां पे एक चीज जरूरी होगी, आई हैव टू कवर दिस सर्कुलर रिंग विद सर्कल्स। मतलब इसको मुझे यहाँ पे एक सर्कल रखना पड़ेगा और यहाँ पे एक सर्कुलर पार्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। उन पार्ट्स को रखने के बाद ही मेरा ये सिलेंडर क्या हो जाएगा? क्लोज सिलेंडर हो जाएगा। तो इस क्लोज सर्कुलर सिलेंडर को इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या लगेगा? बेसिकली मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा 2 pi RH प्लस इसमें मेरे दो सर्कल्स ऐड होंगे। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? pi r स्क्वायर। तो ऐसे कितने सर्कल्स हम यूज करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू यूज 2 सर्कल्स, देयरफॉर वी आर गोइंग टू ऐड एरियाज ऑफ दोस 2 सर्कल्स, दैट इज 2 pi r स्क्वायर। नाउ इसको अगर मैंने यहां से 2 pi r कॉमन ले लिया तो व्हाट इज remaining in bracket h plus r. Understood? So total surface area of a right circular cylinder is 2 pi r bracket h plus r. And last formula, third formula for this cylinder is nothing but volume of a cylinder. Now volume of a cylinder means what? Volume is what? Capacity. अगर मान लो मेरे पास ये मैं बोल if I consider this as a cylindrical tank, ठीक है। तो इस cylindrical tank में कितना वाटर होल्ड होगा? तो वो क्या देगा मुझे? कैपेसिटी ऑफ दैट cylindrical tank। तो ये कैपेसिटी इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर होगा pi r square h. Understood? So these are the basic formulas that we are going to use while solving questions related to right circular cylinder. Okay. Next we are going to see formulas related to cone. ठीक है। तो ये हमारा cone है, having circular base at the bottom. Okay. So this is what radius of a cone and this is perpendicular height of the cone. Now see यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है कि ये जो साइड ऑफ अ कोन है ये स्लैंट है, ठीक है। इट इज मेकिंग सम काइंड ऑफ एंगल विद द रेडियस, सो इसे बोला जाता है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन एंड उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय लेटर l, ठीक है। सो इन दिस कोन वी आर गोइंग टू यूज पैरामीटर्स रेडियस, हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन। स्लैंट हाइट मींस व्हाट? द हाइट व्हिच इज making some kind of angle with the base or with the radius. Okay, तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज व्हाट? pi r l. Understood? Means what? L is slant height, r is radius and pi is a constant. Second formula is what? Total surface area of a cone. Now total surface area of a cone means what? ये देखो ये इसका कर्व्ड शेप है, इस कर्व शेप में अगर इसको मुझे क्लोज करना है, इस कोन को मुझे क्लोज करना है, तो मुझे एक सर्कुलर पार्ट नीचे से लगाना पड़ेगा। Means what? We are going to add one circle at the bottom so that that figure becomes closed figure. Understood? Means what? We are going to add area of a circle in curved surface area. So what is our curved surface area? Pi r l.
and we are going to add one circular base here in order to make it closed figure. So ये क्या हो जाएगा, pi r square इसमें ऐड हो जाएगा. तो इसमें अगर मैंने pi r को कॉमन ले लिया, then in bracket there will be l plus r. So this is nothing but formula for finding total surface area of a cone. Next we are going to see formula for finding volume of a cone. Now volume of a cone is what? Again the capacity that cone can hold. ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा यहाँ पे 1/3 pi r square h. So these are the formulas that we are going to use while solving questions related to cone. Understood? Okay. Next we are going to see formulas for the sphere. Now sphere is what? 3-dimensional circle. एक चीज याद रखनी है, ये जो surface area है next we are going to see formulas for the sphere. तो ये हमारा sphere है. Sphere is what? 3-dimensional circle. मतलब आप लोगों ने ball देखी होगी. That ball is nothing but sphere. आप लोगों ने globe देखा होगा. That globe is nothing but sphere. तो क्या दिखाई दे रहा है, मतलब इस sphere में तो जो formulas हम use करेंगे while solving questions, those formulas will be, first will be surface area of a sphere. Now in case of sphere, surface area is what? Total surface area as well as curved surface area. क्योंकि sphere में दो अलग-अलग surface areas नहीं होते, वहाँ पे हमारा total surface area and curved surface area एक ही होगा. And formula for that surface area is what? 4 pi r square. ठीक है. Now second formula that we are going to see here is volume of a sphere. Now volume of a sphere is what? 4/3 pi r cube. Understood? So these are the two formulas that we are going to use while solving the questions related to sphere. Okay? Next we are going to see formulas related with the hemisphere. So hemisphere means what? If we cut sphere from its middle, then we are going to get half portion of the sphere. That half portion is nothing but hemisphere. जैसे सर्कल को अगर हम लोगों ने सेंटर में से हाफ कर दिया तो वो सेमी सर्कल बोल मतलब मिलता है हमें, वैसे ही स्फीयर को हाफ से कट कर दिया, then we are going to get hemisphere. तो इस हेमिस्फीयर के फॉर्मूले में सबसे पहला फॉर्मूला आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है, हेमिस्फीयर में there will be curved surface area and there will be total surface area, but in case of sphere there will be only surface area that will include its curved surface area as well as total surface area. ये याद रखना है. Okay, now curved surface area of hemisphere. Curved surface मतलब क्या? ये जो outer part हमें दिखाई दे रहा है उस part का area, ठीक है, वो आपका होगा. देखो curved surface area of sphere क्या था और उसका total surface area भी क्या था? 4 pi r square. तो उसका हाफ क्या होगा? 2 pi r square. Okay, next formula is what? Total surface area of a sphere. Now देखिए कर्व सरफेस एरिया में अगर मैंने उसको क्लोज फिगर बनानी है तो I have to add one circular part here. So that circular part is nothing but we are going to add area of a circle in our curved surface area. So total surface area become 2 pi r square plus area of that circle, that is pi r square. So addition of these two will give us what? 3 pi r square. So this 3 pi r square is what? Total surface area of hemisphere. And last one is what? Volume of hemisphere. Now volume of sphere क्या था? Volume of sphere was 4/3 pi r cube. तो उसका अगर हाफ कर देगा तो वो क्या बन जाएगा? 2/3 pi r cube. So these are the formulas that we are going to use while solving questions related to hemisphere. Understood? तो basically हमने इस सेशन में देखा कि कौन से शेप्स यहाँ पे हम यूज करने वाले और कौन से फॉर्मूलाज दैट वी आर गोइंग टू यूज बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीस डिफरेंट शेप्स. तो आपको याद रखना है कि ये जो सारे फॉर्मूलाज है आपको लर्न होनी चाहिए, आपको बाय हार्ट होनी चाहिए. ये लेसन बहुत सिंपल है. इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए. वी आर गोइंग टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स. इन दोज वर्ड प्रॉब्लम्स आपको अगर फॉर्मूला ही याद नहीं आया तो हम आगे बढ़ नहीं सकते.
तो एक चीज क्या याद रखनी है हमें कि जितने भी फॉर्मूले इस लेसन में यूज होने वाले सबसे पहले मुझे वो याद होने चाहिए, फिर ही हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाएंगे और तभी मुझे वो क्वेश्चंस समझ में आएंगे। Understood? So next we are going to solve questions related to these different surface areas and volumes. Okay? Next we are going to start with first exercise of this lesson, that is 13.1. ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में सबसे पहले मेंशन किया है वहां पे कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है हमें 22/7. So we are going to start with first example. देखो, two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of resulting cuboid. मतलब there are two cubes and we are going to join them end to end. अब ये joining आप लोग vertically भी कर सकते हैं या फिर horizontally भी कर सकते हैं, ठीक है? ये मेरा first cube है. Now I am going to join this cube with another cube horizontally. तो ये ऐसे बन जाएगा हमारा next cube. This will be our second cube. ठीक है, तो मैंने इन क्यूब्स को एंड टू एंड ज्वाइन कर लिया. ओके, नाउ आफ्टर ज्वाइनिंग दीस टू क्यूब्स देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्यूबॉइड. तो हमें इस रिजल्टेंट क्यूबॉइड का सरफेस एरिया पूछा. अभी सरफेस एरिया मतलब यहाँ पे वी आर गोइंग टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंट क्यूबॉइड. तो सबसे पहले हमें जो गिवन है उससे हम फाइंड करेंगे एज ऑफ द क्यूब. ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज गिवन. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब. द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज व्हाट? L क्यूब. L इज व्हाट? लेंथ ऑफ अ क्यूब. ठीक है, ये L प्लस ये L. ठीक है, ये भी L. Now L cube is equals to what? 64. Taking cube root on both sides, L becomes 4 centimeter. Understood? मतलब age of cube मुझे मिल गई. Therefore, age of cube is equals to 4 centimeter. ठीक है, अभी एक क्यूब की एज मिल गई, दोनों क्यूब की एज सेम है क्योंकि दोनों क्यूब्स के वॉल्यूम्स 64 सेंटीमीटर क्यूब है. Now we are going to join these two cubes together. तो एक रिजल्टेंट क्या फॉर्म हो रहा है? क्यूबॉइड. Therefore, dimensions of resultant cuboid. The dimensions of this resultant cuboid is what? LA into B into H. मतलब L क्या है यहाँ पे हमारी? देखो 4 है, ये 4 तो 4 plus 4 becomes 8 centimeter. Comma, this is 4 centimeter and this is also 4 centimeter. मतलब आपकी लेंथ बन गई क्यूबॉइड की 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ बन गई 4 सेंटीमीटर एंड हाइट बन गई 4 सेंटीमीटर. नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंट क्यूबॉइड. नाउ टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है? 2 into LB plus BH plus LH. ठीक है, so it will be 2. L is what? 8 into 4 plus 4 into 4 plus 8 into 4. So it will become 32 plus 16 plus 32. So it will be 64 plus 16. 2 into 80, that is 160 centimeter square. So total surface area of resultant cuboid is nothing but 160 centimeter square. मतलब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि ड्यू टू एडिशन ऑफ, मतलब हमने उन दोनों को ज्वाइन किया है, उसकी वजह से एक डायमेंशन चेंज हुआ है. यहाँ पे आपकी जो लेंथ थी वो इंक्रीज हो गई एंड दैट बिकम्स 8 सेंटीमीटर. सो ड्यू टू दैट इंक्रीज इन लेंथ हमारे क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया में भी चेंज हुआ. याद रखना है. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन. So a vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by hollow cylinder. ठीक है, मतलब एक hollow hemisphere है, उस hemisphere के ऊपर we are going to mount a hollow cylinder and उसके बाद देखो क्या बोला है यहाँ पे? The diameter of a hemisphere is 14 centimeter. तो इस hemisphere का diameter कितना given है हमें? 40 centimeter. अगर उसका diameter 14 centimeter है तो हमारी radius क्या हो जाएगी? 7 centimeter. And similarly the height of this cylindrical hemispherical part will also be 7 centimeter. After that
total height of the vessel is given, that total height is what? 30 centimeter. This total height is what? Height of hemisphere plus height of our cylindrical part. ठीक है. Now find the inner surface area of the vessel. तो याद रखना है हमें, as this cylinder is mounted on this hemisphere, तो दोनों के रेडियस क्या होंगे? सेम होंगे. ठीक है. सबसे पहले हम निकालेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर is equals to radius of cylinder. दोनों कितने होंगे? 7 सेंटीमीटर. ठीक है. Now we are going to calculate height of cylinder, cylindrical part. ठीक है. तो देखो यहाँ पे हेमिस्फीयर की हाइट कितनी है? 7 सेंटीमीटर है, एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज व्हाट? 13 सेंटीमीटर. सो हाउ विल गेट हाइट ऑफ cylindrical part? We have to subtract 13 and 7. So 13 minus 7 कितना आएगा? So we have to subtract 13 minus 7. 13 minus 7 कितना आएगा? 6. Next we are going to find height of cylindrical part. अभी देखो यहाँ पे cylindrical part जो है उसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है. Now we have height of this hemispherical part and height of total vessel. ठीक है. तो वेसल के हाइट में से अगर मैं हेमिस्फीयर के हाइट को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? I will get height of cylindrical part. So height of cylindrical part is equal to what? 13 minus 7, that is 6 centimeter. ठीक है. Now we have all the parameters, all the terms that we are going to use for finding inner surface area. तो inner surface area of vessel. अब ये वेसल कैसे फॉर्म हुआ है? यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन है, दो शेप्स है. यहाँ पे फर्स्ट शेप इज व्हाट? योर हेमिस्फीयर. सेकंड शेप इज योर सिलेंडर. तो मुझे क्या करने पड़ेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. इन दोनों को ऐड करूंगा तो देन आई विल गेट व्हाट? Inner surface area of the whole vessel. Now curved surface area of cylinder is what? 2 pi r h, and curved surface area of hemisphere is what? 2 pi r square. तो दोनों में से अगर मैंने 2 pi r को कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचता है h, यहाँ पे बचता है r. After that we are going to substitute values corresponding to these variables. pi की वैल्यू गिवन क्या थी? 22/7 into radius of hemispherical part and cylindrical part is same, that is 7 centimeter, into height is what? Height of a cylindrical part 6 centimeter plus radius of hemisphere क्या है? Again 7 centimeter. 7 मतलब 7 cancel हो गए. 2 into 20 तो कितना आया? 44, and 6 plus 7 is what? Your 30. 13 4s are 52, carry 5. 13 4s are 52 plus 5 57, 572 centimeter square. ठीक है. This is what inner surface area of the vessel. Understood? मतलब हमें क्या करना है? Simply we are going to find the parameter which are not given in the question. After that we are going to just add inner surface area of cylindrical part and inner surface area of hemispherical part. After addition we will get inner surface area of total vessel. Okay. Now we are going to solve question number 4. देखो question number 4 क्या है? A cuboidal block of size 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of a hemisphere can have? And find the surface area of a solid. मतलब there is a cuboidal block and we are going to surmount a hemisphere on it. मतलब एक cuboidal block है, उसके ऊपर हमें क्या लगाना है? Hemisphere. ठीक है. So this is our cuboidal block. On this cuboidal block we are going to add a hemisphere. ठीक है. ये hemisphere ऐसे होगा, याद रखो. ठीक है. अभी ये सरमाउंट हो गया इसके ऊपर. ओके. मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या पूछा आपको? देखो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर. तो देखो जितना इसका डायमीटर है उतनी उसकी एज ऑफ द क्यूबॉइडल ब्लॉक है.
ठीक है, मतलब एज ऑफ द क्यूबॉइड ब्लॉक इज नथिंग बट ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब उससे ज्यादा बड़ा हेमिस्फीयर हम उसके ऊपर सरमाउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट, हमारे आंसर का सबसे पहला पार्ट क्या होगा, द पहले लिखो एज ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू, दैट इज गिवन इन क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर। therefore greatest diameter of hemisphere is equal to age of cube। ठीक है, ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू व्हाट, 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड। ठीक है, ये जो सॉलिड फॉर्म हुआ है, इस सॉलिड का हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। ठीक है, अभी यहाँ पे दो शेप्स यहाँ पे यूज हुए, फर्स्ट इज क्यूबॉइड एंड सेकंड इज हेमिस्फीयर। तो इसके मुझे क्या निकालने पड़ेंगे, सबसे पहले टोटल सरफेस एरियाज। ठीक है, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो यहाँ पे दो शेप्स हमें दिखाई दे रही है। फर्स्ट शेप इज व्हाट, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6l²। ठीक है, प्लस इसमें और एक एडिशन क्या है, आपको यहाँ पे ऊपर एक हेमिस्फीयर दिया है, तो इस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया भी आएगा। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू ऐड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज 2πr²। फिर एक चीज देखो कि इसका जो बेस है, बॉटम है, अगर मैंने इसको इंक्लूड किया, ठीक है, दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन व्हाट, दिस शेप, दिस फेस ऑफ अ क्यूबॉइड, मतलब ये 6l² में इसको ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया हमने। तो हमें वो क्या करना पड़ेगा, we have to subtract this bottom area from this area। तो यहाँ पे होगा 2πr² minus πr²। समझ में आया हमने क्यों माइनस किया, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इज व्हाट, 6l² इज व्हाट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो इस टोटल सरफेस एरिया में हमने ऑलरेडी इस पार्ट को इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, बट लेकिन हमारे सॉलिड के केस में ये बात, मतलब ये आ नहीं सकता। हमारा सॉलिड का सरफेस एरिया ऐसे होगा जिसमें ये सर्कुलर पार्ट इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, सो वी हैव टू सबट्रैक्ट दैट सर्कुलर पार्ट, मींस व्हाट, एरिया ऑफ सर्कल फ्रॉम दिस एरिया। सो आवर फार्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड विल बी 6l², दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ योर क्यूब, प्लस 2πr², कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, माइनस व्हाट, दिस पार्ट। ठीक है, तो ये 6l², 2πr² minus πr² becomes what, πr² only। ठीक है, now we are going to just substitute values। 6l² is what, age of the cube is 7, that is 7² plus value of pi 22/7 and radius of a hemisphere। अब diameter of hemisphere कितना है, 7 है, तो radius क्या हो जाएगी, radius is equals to 7/2 centimeter। So your r² is what, 7/2 into 7/2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 7 1 7, 2 1 2, 11 then we will have 6 into 49 plus 11 into 7/2, that is 6 into 49 will be 294 plus ये होगा 77/2। फिर हम क्या करेंगे, 294 plus 77/2 that is 38.5, इसकी एडिशन आएगी 332.5 centimeter square। So this is what total surface area of a solid, 332.5 centimeter square। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड। इस सॉलिड में दो शेप्स है, फर्स्ट इज क्यूब, सेकंड इज व्हाट, हेमिस्फीयर। तो हमने दोनों के टोटल सरफेस एरिया को फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद जो कॉमन एरिया आ रहा था उसको वहां से सबट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग वी गॉट दिस आंसर। ओके, next we are going to solve question number 6। in question number 6, a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its end. The length of entire capsule is 14 mm and diameter of the capsule is 5 mm। now we are going to find surface area of this capsule। तो देखो ये कैप्सूल जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे तीन पार्ट्स है। ये फर्स्ट पार्ट है आपका हेमिस्फेरिकल एंड,
ठीक है, ये दूसरा हेमिस्फेरिकल एंड है और बीच में आपके पास क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेसिकली फॉर फाइंडिंग सरफेस एरिया ऑफ दिस कैप्सूल, मुझे पहले सबसे पहले जो डायमेंशंस corresponding to these shapes I have to find. सबसे पहले we are going to find height of a cylinder, ठीक है। First height of cylindrical part. Cylindrical part की हाइट देखो, ये आपका डायमीटर 5 mm है, तो आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी 2.5 mm, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ये 2.5 mm, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट इस टोटल लेंथ में से ये 2.5 एंड 2.5 माइनस कर दिया मैंने, तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट हाइट ऑफ अ सिलिंड्रिकल पार्ट। सो हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल सिलेंडर इज इक्वल टू 14 minus 5, that is 9 mm, okay। After that we have radius of cylinder, that is equals to radius of हेमिस्फीयर, दोनों के रेडियस सेम है, तो वो क्या होंगे 2.5 mm, ठीक है, समझ में आया। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ दीज टू हेमिस्फेरिकल एंड वी आर गोइंग टू ऐड इट विद कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल्स टू व्हाट, दो हेमिस्फेरिकल एंड है हमारे पास, तो 2 into कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो ये 2 into कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 pi r square प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 pi r h, ठीक है। तो यहां में से मैंने 2 pi r कॉमन ले लिया, 2 pi r, अंदर क्या बचा ब्रैकेट में 2 r plus h, so 2 into pi की वैल्यू 22/7, radius is given, radius is what 5/2, that is 2.5, ओके। 2.5 को हम लिखेंगे 5/2, ठीक है, into ब्रैकेट में 2 into radius अगेन 5/2 प्लस हाइट इज व्हाट 9 mm। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 1 गेट कैंसिल, ठीक है। ये आएगा 110/7 इनटू 2 गेट कैंसिल, 9 + 5 40, ठीक है। तो 2 7 1 7 7 2 40, हमारा आंसर कितना है 220 mm स्क्वायर, ठीक है। एज डायमेंशंस आर गिवन इन mm, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल बन गया 220 mm स्क्वायर। मतलब याद क्या रखना है, वी आर गोइंग टू जस्ट ऐड कर्व सरफेस एरिया ऑफ एरियाज ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड विद कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग वी गॉट दिस आंसर, अंडरस्टूड। ये आपको याद रखना है कैसे सॉल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फ्रॉम सम सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square, ठीक है। मतलब हमारे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में से एक conical cavity कट की है हमने, ठीक है, of the same height, मतलब जितनी हाइट सिलेंडर की है, and of the same diameter, मतलब जितना डायमीटर सिलेंडर का। तो देखो इस केस में दिखाई दे रही है हमारा सिलेंडर है, दिस इज आवर रेडियस, दिस इज हाइट ऑफ ए कोन, ठीक है ना। ये पोर्शन हमने क्या किया है, होलोड आउट। होलोड आउट मींस व्हाट, हमने वहां से रिमूव किया। तो उसको रिमूव करने के बाद जितना सॉलिड हमारे पास रिमेनिंग है, उस सॉलिड का हमें क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है 2.4 सेंटीमीटर, सो हाइट ऑफ योर कोन विल आल्सो बी 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। आफ्टर दैट डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज व्हाट 1.4 सेंटीमीटर, तो डायमीटर ऑफ कोन भी 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, एंड द रेडियस ऑफ कोन एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर विल बी 1.4 डिवाइड बाय 2, दैट इज 0.7 सेंटीमीटर या फिर 7/10, ठीक है। ये हमारे डायमेंशंस हो गए, ये हमारी फिगर होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे हाइट ऑफ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है,
height of cylinder is equals to height of cone, दोनों की हाइट सेम है, that is 2.4 सेंटीमीटर. After that, radius of cylinder is equals to radius of cone is equals to 1.4 upon 2, that is 0.7 centimeter. ठीक है. Next, we are going to find total surface area of remaining solid. ठीक है, मतलब वो कोनिकल कैविटी हमने वहां पे बना दी, उसके बाद जितना एरिया बचता है वो हमारा रिमेनिंग एरिया होगा. अभी इसमें देखो क्या दिखाई देगा मुझे, ये कोनिकल पोर्शन रिमूव होने के बाद आई विल हैव दिस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अंडरस्टूड? सो दैट विल बी 2 pi RH प्लस अगेन आई विल हैव कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. ये ऐसा पार्ट दिखाई देगा आपको ये सिलेंडर के अंदर, तो ये पोर्शन मतलब क्या होगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो वो क्या होता है pi r l. ठीक है, प्लस आपके पास क्या बचेगा, ये जो सर्कुलर पोर्शन है ऊपर वाला, वो सर्कुलर पोर्शन दैट इज एरिया ऑफ सर्कुलर बेस. अभी बेस का जितना एरिया होगा उतना एरिया टॉप का होगा, तो वो होगा हमारा pi r स्क्वायर. तो देखो इस फॉर्मूले में हमें क्या लगने वाला है, L मतलब स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन, एंड इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्लैंट हाइट को फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे L इज इक्वल्स टू व्हाट, वी आर गोइंग टू फाइंड L. सो L क्या होगा हमारा, L इज इक्वल्स टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर. ये फार्मूला है स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन का. ठीक है, याद रखना है आपको. सो इट इज इक्वल्स टू व्हाट इज योर रेडियस, रेडियस इज व्हाट 0.7 स्क्वायर प्लस हाइट इज व्हाट 2.4 होल स्क्वायर. तो 7 का स्क्वायर होता है 49, सो इट विल बी 0.49 प्लस 2.4, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, तो ये 5.76. इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.25. ये किसका स्क्वायर होगा 2.5 का. तो L कितना मिला मुझे 2.5 सेंटीमीटर. सो वी आर गोइंग टू यूज दिस L दैट इज स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन इन दिस फार्मूला. तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, देखो सब जगह पे pi r दिखाई दे रहा है, तो इस pi r को मैंने कॉमन ले लिया. मेरे पास यहां पे बचा 2h प्लस यहां पे L प्लस यहां पे r. ठीक है, तो pi की वैल्यू क्या है मेरे पास 22/7 एंड रेडियस कितनी है 0.7. 2 इनटू हाइट कितनी है 2.4 प्लस लैंड हाइट इज व्हाट 2.5 प्लस रेडियस इज व्हाट 0.7. तो 7 1 जा 7, 0.1 जा 22 into 0.1. उसके बाद क्या होगा 22 into 0.1 will be 2.2, then 2 into 2.4 will be 4.8 plus 2.5 plus 0.7. So ये 2.2 as it is इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 carry 2 that is 8.0. So 8 से मल्टीप्लाई करो 2.2 को, आपको आंसर क्या मिलेगा 8 to the 16 carry 16 plus 1 70, that is 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये क्या होगा हमारा एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. अंडरस्टूड? मतलब मुझे क्या करना है, ये कोनिकल कैविटी रिमूव करने के बाद, कोनिकल कैविटी फॉर्म होने के बाद यहाँ पे कौन सा एरिया बचता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड अलोंग विद इट बेस एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9. देखो क्वेश्चन नंबर 9 में a wooden article was made by scooping out hemisphere from each end of a solid cylinder. तो ये एक सॉलिड सिलेंडर है, उस सॉलिड सिलेंडर के एंड से हमने ये जो हेमिस्फीयर है वो स्कूप आउट की, स्कूप आउट यानी उसको रिमूव कर दिया गया. ठीक है, if the height of a cylinder is 10 centimeter, height of cylinder is 10 centimeter and base radius is 3.5 centimeter. ठीक है, radius of cylindrical base is what 3.5 centimeter. Then we have to find total surface area of the article. ठीक है, तो ये हमारी फिगर है. तो इस फिगर में सबसे पहले क्या दिखाया जाएगा कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. देन रेडियस ऑफ सिलेंडर, radius of cylinder and radius of hemisphere will be equal. So the radius of cylinder and the radius of sphere will be radius of hemisphere
दोनों क्या होंगे 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, मतलब ये पोर्शन उसमें से रिमूव किया है। ठीक है, दोनों एंड से हेमिस्फीयर्स रिमूव किए, तो मेरे पास जो रिजल्ट का शेप बचता है, उस रिजल्टेंट शेप का मुझे क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें क्या होगा, देखो बहुत सिंपल है ये, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल्स टू, हमारे पास होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये कर्व्ड सरफेस एरिया पूरा बचेगा, प्लस 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, मतलब ये जो हेमिस्फीयर है दोनों, उन दोनों हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया हमें दिखाई देंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH प्लस 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई R स्क्वायर। तो इसमें से 2 पाई R कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे बचेगा H प्लस यहाँ पे बचेगा 2R, सो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज व्हाट 3.5, H हाइट इज गिवन 10 प्लस 2 इंटू 3.5। तो इसको सॉल्व करेंगे, 7 1 7 0.5 फिर आ जाएगा हमारा 44 इंटू 0.5 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 7 दैट इज 17। 44 इंटू 0.5 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 22 इंटू 17, 22 इंटू 17, 17 2 जा 34, कैरी 3, 17 2 जा 34, 34 प्लस 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बी अबाउट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, अंडरस्टूड? ओके।